Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Raupal BBA College Vapi, and I'm going to teach a fundamental of economics subject. And we will continue our chapter that is elasticity of demand. So today in this session we will discuss about the cross elasticity of demand. Now we already learned about price elasticity of demand and the income elasticity of demand. So price elasticity of demand, what it says, it shows rate of change in demand due to change in price, whereas income elasticity says rate of change in demand due to change in income. So what is cross elasticity? Okay, so cross elasticity means what? Okay, demand for the commodity, it is influenced not only by the price of the commodity and income of consumer, but also by price of other commodity. Okay, so concept of cross elasticity, it is important in the case of the commodity which are substitute goods and the complementary goods. So example, tea and coffee are the substitute with each other, whereas car and the petrol are the complementary goods. So यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट समझो कि वी ऑल नो दैट कि डिमांड फॉर द कमोडिटी इट इज़ इन्फ्लुएंस, यानी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंज not only by the changes in price of this commodity and income of the consumer, but also changes in price of other related commodity. ओके, यानी डिमांड चेंज हो रहा है ऐसे कि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, not because of changes in price of this product, but because of changes in price of other goods. changes in price of other goods आ रहा है समझ में? सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्या कह रहा है कि डिमांड चेंज होता है, नहीं कि चेंज इन प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट चेंजेस इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, एंड अदर प्रोडक्ट दैट इज व्हाट मे बी सब्सिट्यूट प्रोडक्ट और द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स. So, what is cross elasticity? The degree to which demand for product X change when price of substitute product Y or price of complementary product Z changes is called as what? Cross elasticity of demand. Okay, यानी demand of product X change, demand of product X change. Why? Because of change in price of Y or changes in price of Z. This is called as what? Cross elasticity of demand. Clear? So cross elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of demand to a given change in price of some related commodity, and here related commodity is what? Substitute goods and the complementary goods. आया समझ में? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सो इन ब्रीफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करा है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंज नॉट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी, but because of changes in price of other commodity, that is what? Other related commodity, that is either substitute goods or the complementary goods. Now next question, methods of measurement of price elasticity of demand. Method of measurement of price elasticity of demand or equation. So here क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन एनी टू गुड्स एक्स एंड वाई. यहाँ पे दो गुड्स लेना पड़ेगा, सेम गुड्स नहीं, हाँ सेम गुड्स नहीं, एक्स एंड वाई. सो इफ देर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, then cross elasticity it is measured as ratio of proportionate change in quantity demand of product X by the proportionate change in price of Y. यानी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट X चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट Y. दैट इज व्हाट? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो यहाँ आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट Y. ना परसेंटेज को आप कैसे लिखते हो आपको पता है ना? डेल्टा क्यू. सो डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई. सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय डेल्टा पी वाई. गेट इट? सिंपल सा फॉर्मूला है ना. वहाँ पे प्राइस में क्या था?
प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था कि डेल्टा क्यू ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा पी ऑफ एक्स, यानी प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्सचेंज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, दैट इज व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी। बट क्रॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी ऑफ एक्स चेंज हो रहा है, दैट इज डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स। वाई? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई। आया समझ में? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? नाउ हियर पी वाई इज व्हाट ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, डेल्टा पी वाई यानी चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, क्यू एक्स यानी ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड डेल्टा क्यू एक्स यानी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड एक्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक समझ में आया? ये फॉर्मूला कैसे याद रखना था? ओके, सो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, एग्जांपल डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ टी। नाउ टी के डिमांड में चेंज आया, वाई? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। आया समझ में? यानी प्रोडक्ट टी में चेंज आया बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। टी का प्राइस नहीं देखना है, टी का डिमांड चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Now the cross elasticity of demand is either positive or negative. It is mainly depend upon the nature of the goods, यानी कौन से टाइप का गुड्स है ना उसके ऊपर डिसाइड होगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव आएगा या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव में आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ना सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जाम्पल क्या है? टी एंड कॉफ़ी। हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट टी एंड कॉफ़ी। सो रिमेंबर, cross elasticity of demand for the substitute goods, it is always be positive. Cross elasticity of demand for the substitute goods always be positive. Best example that is tea and coffee. This means कि cross elasticity of demand for the substitute goods implies that is increase or decrease in price of one commodity. This may lead to increase or decrease in demand of another commodity. और अनदर कमोडिटी कौन सी? सब्सिट्यूट कमोडिटी। यानी एक प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज आएगा। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो जाएगा? डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी इंक्रीज होगा, दैट इज़ व्हाट सेम डायरेक्शन आया, दिख रहा है? लाइकवाइज प्राइस ऑफ टी फॉल हो गया तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन आया। दैट इज वाई वी कैन से कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द सब्सिट्यूट गुड्स इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट इज increase or decrease in price of one commodity will lead to increase and decrease in demand of other commodity, that is substitute commodity। यानी एक प्रोडक्ट का प्राइस राइज होगा तो उसके सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड भी राइज होगा। एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसका सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड भी कम होगा। दिस इज व्हाट पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर द सब्सिट्यूट गुड्स। यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कि व्हेन प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज देन डिमांड ऑफ कॉफ़ी तो फॉल होगा ही बिकॉज इट इज़ नाउ कॉस्टलियर, बट उसका जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है दैट इज टी, डिमांड फॉर टी इंक्रीज आया समझ में? एग्जांपल कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज हुआ तो रिजल्ट क्या होगा? अभी हम लोग कॉफ़ी नहीं पिएंगे, ओके, हम लोग टी पीने जाएंगे तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज व्हाट पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर? ना आपने जो एग्जाम्पल में लिया, ये एग्जाम्पल में कॉफ़ी का प्राइस एज्यूम किया एंड टी का डिमांड एज्यूम किया, तो हम लोग का एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस उसका अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होगा।
सो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिखना होगा, प्राइस, दैट इज प्राइस ऑफ कॉफी, एंड एक्स एक्स पे क्या लिखना होगा, क्वांटिटी ऑफ टी. ओके, नाउ व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी इज OP1, एट दैट टाइम डिमांड इज OQ1. नाउ प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज OP1 से OP2, तो डिमांड ऑफ टी ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1. सो उसका स्लोप ऑफ द डिमांड का क्या आया, अपवर्ड स्लोप फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स. Clear? That is what positive relationship. So in this diagram, when price increase for coffee na, then the demand also increase for tea. Thus the demand curve show upward slope for the substitute product. Clear all of you? Now we can explain with the help of one practical example. Now example पढ़ो. If price of coffee increase from 50 to 70 rupees per kg, as a result, demand of tea increase from 5 kg to 10 kg. Then what will be the cross elasticity of demand? देखो एग्जाम्पल कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज हुआ फ्रॉम 50 टू 70, तो उसका इफेक्ट क्या आया, टी का डिमांड ऑफ टी इंक्रीज हो गया 5 टू 10 kg. ओके, सो यहाँ पे आपको एज्यूम करना है और डिसाइड करना है कि यहाँ पे कॉफ़ी का प्राइस, ओके, दैट मीन्स कॉफ़ी भी वाई हो जाएगा, कॉफ़ी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा. ओके, एंड डिमांड किस में चेंज आया, टी, सो टी बी एक्स, ऐसा. क्लियर? सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू एक्स. सो एक्स क्या लिया हम लोग ने, टी ना, सो डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू पी ऑफ वाई अपॉन डेल्टा पी वाई. तो ये फॉर्मूला है. सो यहाँ पे मैंने डाल दिया कि डेल्टा क्यू ऑफ टी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ टी इंटू ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉफ़ी डिवाइडेड बाय डेल्टा प्राइस ऑफ कॉफ़ी. क्लियर? नाउ हियर डेल्टा क्यू यानी न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, दैट इज न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड. सो यहाँ पे टी को हम लोग ने क्वांटिटी लिया था ना, तो देखो 5 से 10 kg हुआ, यानी न्यू क्वांटिटी 10 एंड ओल्ड क्वांटिटी 5, तो डेल्टा क्यू का आंसर कितना आएगा, 5 kg. लाइकवाइज डेल्टा पी ऑफ कॉफ़ी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी, सो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, सो न्यू प्राइस 70 एंड ओल्ड प्राइस 50, तो आपका आंसर कितना आया, 20, दैट इज डेल्टा पी. देन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ टी 5 kg है, ओके, एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉफ़ी कितनी है, 50 रुपीज़ है. क्लियर? सो हम लोग को सब मिल गया. डेल्टा क्यू ऑफ टी कितना, 5, देन क्यू ओनली 5, देन पी 50 एंड डेल्टा पी इज व्हाट, 20. सो आंसर पॉजिटिव, दैट इज 2.5. आया समझ में कैसे करना था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सम्स पढ़ना है कि अगेन मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 70, यानी प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज हुआ 50 टू 70, तो डिमांड ऑफ टी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ 5 टू 10. क्लियर? सो हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा क्यू ऑफ टी अपॉन टी इंटू क्वांटिटी ऑफ टी इंटू प्राइस ऑफ कॉफ़ी अपॉन डेल्टा प्राइस ऑफ कॉफ़ी. नाउ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टी, देखो 5 टू 10, 5 से 10 हो गया, सो चेंज कितना आया. आप ये वर्किंग नोट ना करो ना तो भी डायरेक्टली आप ओरली भी कर सकते हो. डेल्टा क्यू ऑफ टी क्या आ जाएगा, 5 से 10 kg ना, सो डेल्टा क्यू 5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ टी 5 इंटू ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉफ़ी 50 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, दैट इज 50 से 70, तो कितना आया, 20. सो 5 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2.5, और ये पॉजिटिव आंसर. क्लियर? सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द सब्सिडाइज्ड गुड्स, इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव. Now next is what, cross elasticity of demand for the complementary goods, it is always be negative. Okay, so cross elasticity of demand for the complementary goods, it is always be negative, that is car and petrol,
motorcycle and petrol, bread and butter are the example of complementary goods. It means increase or decrease in price of one commodity. This may lead to decrease and increase in demand of another commodity. देखो रिलेशनशिप नेगेटिव. ओके, इट मीन्स एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का डिमांड कम हो जाएगा. ओके, एंड प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज व्हाट नेगेटिव रिलेशनशिप. क्लियर? सो बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट? कार एंड पेट्रोल. सो यहाँ पे एग्जांपल देखो. सो क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इम्प्लाइज दैट कि इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड टू डिक्रीज और इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी. सो व्हेन, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल लिया कि व्हेन प्राइस ऑफ बटर इंक्रीज हुआ तो बटर जो ब्रेड में यूज़ होता है, बटर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो बट बस बटर का डिमांड कम हो जाएगा. ओके, सो बटर जो हम लोग ब्रेड में यूज़ करते हैं तो डिमांड ऑफ ब्रेड भी क्या हो जाएगा? डिमांड ऑफ ब्रेड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ओके, बिकॉज बटर ही हम लोग परचेज नहीं करेंगे तो ब्रेड भी हम लोग कम परचेज करेंगे. सो डिमांड ऑफ ब्रेड फॉल्स हो जाएगा. क्लियर? मैं अनदर एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सो एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल और मोटरसाइकिल एंड पेट्रोल. चलो, ओके, बाइक एंड पेट्रोल. इफ प्राइस ऑफ बाइक इंक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ बाइक क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा. नाउ बाइक में जो पेट्रोल यूज़ होता है, पेट्रोल, उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. देखो रिलेशनशिप क्रॉस का नेगेटिव आया ना. क्लियर? उसका अपोजिट, व्हेन प्राइस ऑफ बाइक फॉल तो डिमांड ऑफ बाइक इंक्रीज हो जाएगा. अभी बाइक में जो पेट्रोल यूज़ होता है, पेट्रोल, तो डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज व्हाट इंडिकेटिव रिलेशनशिप. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल दिया. व्हेन प्राइस ऑफ बटर इंक्रीज तो डिमांड ऑफ बटर फॉल हो जाएगा, बट डिमांड फॉर ब्रेड ऑल्सो फॉल डाउन. क्लियर? सो यहाँ पे एज्यूम क्या किया? बटर को प्राइस लिया एंड ब्रेड का डिमांड लिया. सो आपकी उसके अकॉर्डिंगली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आएगा. दैट इज एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ ब्रेड एंड वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ बटर. क्लियर? व्हेन प्राइस ऑफ बटर इज OP1 एट दैट टाइम डिमांड ऑफ ब्रेड इज OQ1. तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा. नाउ प्राइस ऑफ बटर इंक्रीज हो गया, OP1 से OP2 हो गया, तो डिमांड ऑफ ब्रेड ऑल्सो फॉल. प्राइस इंक्रीज ऑफ बटर तो डिमांड ऑफ ब्रेड फॉल्स हो गया. तो आपका डाउनवर्ड स्लोप आएगा, डिमांड का होगा डाउनवर्ड स्लोप. क्लियर? सो यहाँ पे एग्जाम्पल का जो डायग्राम उसको एक्सप्लेन किया कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट इज ऑलवेज बी नेगेटिव. व्हेन प्राइस इंक्रीज फॉर बटर देन डिमांड डिक्रीज फॉर ब्रेड. दस डिमांड का always be slopes downward from left to right for a complementary goods. Now उसको एग्जाम्पल समझो. इफ प्राइस ऑफ बटर, ये पुराना अमाउंट है, सो याद रखो कि प्राइस ऑफ बटर डिक्रीज फ्रॉम 7 to 6. बटर का प्राइस डिक्रीज हो गया 7 to 6, तो रिजल्ट क्या होगा? डिमांड फॉर ब्रेड इंक्रीज हो गया 80 से 90. ओके, सो रिमेंबर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो आपका आंसर ऑलवेज भी नेगेटिव में आना चाहिए, माइनस में. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल में हम लोग ने बटर का प्राइस लिया एंड ब्रेड को डिमांड लिया. सो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि प्राइस बटर भी वाई, बटर क्या हो जाएगा? वाई. ओके, एंड ब्रेड क्या हो जाएगा? एक्स. ओके, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू ऑफ एक्स. सो एक्स हम लोग ने ब्रेड लिया, सो डेल्टा क्यू ऑफ ब्रेड डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ ब्रेड इंटू प्राइस ऑफ ब्रेड डिवाइडेड बाई डेल्टा प्राइस ऑफ ब्रेड. नाउ ये सब वर्किंग नोट्स में दिखाया हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, बट आप डायरेक्टली ओरल भी कर सकते हो. नाउ डेल्टा क्यू ऑफ ब्रेड, अभी आप देखो ब्रेड का क्वांटिटी डिमांड 80 से 90 हुआ. देखो, दिख रहा है ना, ब्रेड का डिमांड 80 से 90 हुआ. इट मीन्स डेल्टा क्यू कितना आया? चेंज 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ब्रेड 80 इनटू
ओरिजिनल प्राइस ऑफ बटर, पी ऑफ बटर ना, ओरिजिनल प्राइस कितना है 7 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बटर 7 to 6, चेंज कितना आया 1। ओके, सो आप डिवीजन करोगे, सो 7 डिवाइडेड बाय 8 एंड आपका आंसर क्या आएगा -0.88, बट रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो उसका आंसर किस में आएगा -0.88। क्लियर? दिस इज व्हाट क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड लास्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर द न्यूट्रल प्रोडक्ट, सो ऑलवेज बी 0। नाउ न्यूट्रल मतलब नाइदर सब्सटीट्यूट नॉर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स है। Okay, so cross elasticity of demand for the product which is neither substitute nor complementary, it is always be 0, यानी unrelated product. It means whatever change in price of product Y, there is no change in demand of product X. So example table and fan, नहीं वो substitute product है, नहीं complementary, unrelated product है. So whatever change in price of fan, there is no effect on demand of table. Okay, फैन के प्राइस में कोई भी चेंज आए बट डिमांड ऑफ टेबल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो उसका शेप ऑफ द डिमांड का क्या होगा, इट इज स्ट्रेट लाइन वर्टिकल पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ओके, ने वाई एक्स से वो पैरेलल हो जाएगा, यानी प्राइस ऑफ फैन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ बट डिमांड ऑफ चेयर का कोई अफेक्ट नहीं आया, जो था वही रहा। क्लियर? सो ये डी डिमांड का। सो दिस इज व्हाट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द न्यूट्रल प्रोडक्ट, इट इज ऑलवेज बी 0, यानी वॉट एवर चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, देर इज नो अफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2 पार्ट बी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर। क्लियर? बाय, टेक केयर।